request Dr. R. Rajesh Kumar, Secretary, Department of Medical Health and Family Welfare, Government of Uttarakhand, for his address. Over to you, sir. आज उत्तराखंड हेल्थ केयर इनोवेशन समिट कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय राज्यपाल आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सर, सेतु आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजशेखर जोशी जी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ अनुराधा पाल जी, अपुल की हेल्थ केयर एवं वेलॉक्स मीडिया से उपस्थित माननीय अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित बाकी सभी डेलीगेट्स, मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट के कलीग्स, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, भाई और बहनों। वर्जिल एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे, तो उन्होंने कहा था द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो इसी वजह से शायद एक कारण है कि वी हैव ऑल गैदर्ड हियर टुडे, और हेल्थ से इम्पोर्टेंट कोई ना टॉपिक था, ना टॉपिक है, ना टॉपिक हो सकता है। और ये आज का जो उत्तराखंड हेल्थ केयर इनोवेशन समिट है, ये एक प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए, एंड आई एम श्योर दैट इट विल सर्व एज अ क्रूसिबल फॉर innovation, and such summits will be the order of the day in the times to come. एक ऐसा जर्नी जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी, सभी तीनों चीज़ों को हम लोग embrace करेंगे. I am here to present a broad overview of the healthcare ecosystem in Uttarakhand. Or we have taken tremendous strides in the field of digital health, HR, public-private partnerships. But we do have problems in terms of geography and the placement of our healthcare professionals. हमारा जो landscape है is mountainous, Himalay राज्य है हमारा, but जो हमारे aspirations हैं हिमालय से भी ऊपर हैं. तो with this prospect in mind, let me shed light on the innovations that we have done, the healthcare landscape here in Uttarakhand, et al. So as Anuradha mentioned, यहाँ पे हमारा जो doctors का churning out है is quite reasonable. We do churn out around 975 undergraduates and around 350 odd postgraduates in the years to come. But what we also focus on is on the healthcare of the downtrodden, at the bottommost level, that is at the level of the health and wellness centers. और हमारे लिए, और माननीय राज्यपाल जी भी हमेशा एक कंसर्न रेस करते हैं कि महिला का जो केयर है, वुमेन हेल्थ केयर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग सेफ बर्थ्स एंड इम्यूनाइजेशन, एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारे स्टेट में. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इन टर्म्स ऑफ HR, जो हमारा मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स का, वी हैव बीन एबल टू ब्रिज दैट गैप, एंड हमारा अभी 0.85 per 1000 है, which is a little bit below the 1 per 1000 mark of World Bank. लेकिन thanks to our honorable minister sir here, जो हमारे पैरामेडिक्स के जो ये हैं, चाहे वो नर्सेस हों या दूसरे फील्ड्स के हों, we now recruited around 3000 nurses abhi, and I would all request you to join in a round of applause for our honorable minister sir. So usse we have sort of narrowed the gap to 1.6, 1.7 per 1000, which is again well below the World Health Organization norm of 3 per 1000. Where we have done well compared to the national average is we have, जो child mortality है, we have gone to 26, the national average is 28. But जो सबसे heartening है,
और जो विकसित भारत 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसमें एक कंपोनेंट है महिला। तो उसमें हम लोगों ने जो सेक्स रेशियो है, NFHS 4 और NFHS 5 में आप कंपेयर करेंगे तो NFHS 4 में 888 था, NFHS 5 में 984 है। इट इज अ tremendous and a remarkable jump thanks to the dedicated healthcare staff here led by our honorable minister sir. जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उस पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ. सो you must all have heard about AI. It is both a buzzword in today's times and also probably one of the most abused words. एक recent Pew survey हुआ था 3 दिन पहले and the concerns raised regarding AI were more than the positive outcomes regarding AI. And लेकिन अगर हम AI को as a assisted intelligence use करें, I think that will negate the concept of anarchical intelligence जो world is fearing. And यहाँ पे in the health sector here in Uttarakhand, we have been able to sort of imbibe the power of AI, the power of predictive analysis and machine learning to improve patient management and patient related outcomes. AI को हमने टेलीरेडियोलॉजी में भी यूज़ किया है और रेडियोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे. तो वेयर द ह्यूमन इंटरवेंशन इज नॉट पॉसिबल, हम लोगों ने टेलीरेडियोलॉजी थ्रू AI का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस किया है. एंड इन द वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड telemedicine project, which is the largest doctor-to-doctor interaction anywhere in India. This is a very less known fact, so I would just like to put this fact into perspective. Largest doctor-to-doctor monitored AI telemedicine project चल रहा है उत्तराखंड में, जो अभी फिलहाल खत्म हो गया है, and the health department will now take over. एक हमने जो साइलेंट पैंडेमिक कहा जाता है, विच इज मेंटल इलनेस. तो मेंटल इलनेस में भारत सरकार ने टेलीमानस इत्यादि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया है, लेकिन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन कटिंग एज पॉलिसी, जहाँ पे उत्तराखंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2023 हमने वी हैव कम आउट विद दैट एक्ट, एंड दिस एक्ट सॉर्ट ऑफ फ्रेम्स द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ मेंटल health institutions. And this is in line with Nasha Mukt Uttarakhand 2025, which is the vision of our Honorable Chief Minister, sir. We also focus on regular skilling, upskilling and reskilling of both the doctors as well as the paramedical staff and those staff such as the ANMs, the nurses, the CHOs, etc., so that the pyramid is evenly balanced. यहाँ पे हम लोगों ने U-Quote V पे we have bought in, जहाँ पे we give a very, very handsome remuneration to the doctors up to 4 to 5 lakhs. But the condition is that they have to go and work in the hilly and remote areas. And as a matter of policy itself, we ensure that doctors in our system go and work in the remote areas. They do PG, they do super specialization, and we give them permission with the condition that they come back and serve the downtrodden in our state. And also in terms of outreach programs, we have mobilized our huge Behani Sena of CHOs, ANMs, ASHAs, and इनको यूज करके हमने माननीय राज्यपाल जी का जो यहाँ पे प्राइम फोकस है टीबी मुक्त उत्तराखंड एट 2025, उस पे जो है हमने फोकस किया है. सर इज द डिग्निटरी हु हैज अडॉप्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ टीबी पेशेंट्स in Uttarakhand. I would like to thank Honorable Governor sir from the bottom of my heart for setting an example for all of us. अच्छा, फ्यूचर की तरफ हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं, हमारे क्या स्ट्रैटेजीज हैं, अगर हम नज़र डालें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि वी कैन नॉट सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग विच वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम.
तो हमारे सिस्टम में एक रिफ्रेश बटन हमेशा होते रहना चाहिए, जो हम हमारी थिंकिंग को हमेशा रिफ्रेश करते रहें टाइम एंड अगेन, बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज एवॉल्विंग। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये सोचा है कि उत्तराखंड को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा जाए, सोलर पावर्ड हॉस्पिटल्स बनाया जाए, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, ताकि एक एनवायरमेंटली कॉन्शियस हेल्थ इकोसिस्टम की ओर हम लोग अग्रसर रहें। योगा और आयुर्वेदा की बात करें तो हमने डॉक्टर्स को एक हफ्ते का क्रैश कोर्स दिया है योगा और आयुर्वेदा में सर, 1 week का, ताकि they are aware about the other traditional systems of medicine. We envisage a system wherein both the traditional as well as the modern systems of medicine can cohabit. Baki things I can go on and on and on, for example, Ayushman Bharat Digital Mission and all that, but then I would like to close by 2 points, and before that, I just want to mention the role of startups in promoting health ecosystem. We need to have a whole of society approach. इसमें हम लोग विश फाउंडेशन और जो हंस फाउंडेशन है, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम किया है, उनको भी envisaging their help and support. We have also brought in startups like Cloudspital and Sunfox, जिन्होंने एक ECG टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो वहीं पे चारधाम के पिलग्रिम्स में ऑन द स्पॉट ECG का टेस्टिंग करता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय मेंशनिंग 2 पॉइंट्स। जितने भी चर्निंग्स इस समिट में होंगी, आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ चर्निंग्स, दे शुड अलाइन विद आवर ओवरऑल विजन फॉर हेल्थ, एंड दैट शुड इन टर्न ओवरऑल अलाइन विद द विजन फॉर विकसित भारत 2047। विकसित भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 पिलर है। सर, ऑनरेबल गवर्नर सर हमेशा 3 त्रिशूल की बात करते हैं, 3 कहते हैं। मैं एक सर विथ योर परमिशन एक एक्स्ट्रा वो पिलर ऐड कर रहा हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है सर। विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, विच वॉज हाईलाइटेड इन दिस, इस बार के इसमें भी। एक तो युवा है, एक गरीब है, महिला है और अन्नदाता है। ये 4 स्तंभ हैं विकसित भारत के। अगर हमारा हेल्थ सिस्टम इन्हीं 4 पे फोकस करे, आई थिंक वी विल बी ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत 2047। और एक चीज़ और, अभी as India strides towards Viksit Bharat and as our systems of medicine become more acceptable in the West, abhi, why don't we like envisage a system jahan pe both Indian systems of medicine or traditional systems of medicine ek saath chale? Why don't we envisage a system jahan pe Gray's Anatomy का book जो है anatomy students के लिए सबसे important book है Gray's Anatomy, shares a shelf cupboard space with चारक संहिता, जहाँ पे डा विंची रोबोट्स जो सर्जरी के लिए यूज होते हैं योग सूत्र के साथ साथ चले। एंड आई एम टेलिंग यू, उत्तराखंड इज द मोस्ट आइडियली सूटेड डेस्टिनेशन फॉर दिस, बिकॉज ये जननी है योग की, ये जननी है आयुष की। एज वी स्पीक, कल से योगा वीक जो है, योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में स्टार्ट हो रहा है। आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू टू गो एंड पार्टिसिपेट इन द योगा फेस्टिवल। तो ये एक जो है आने वाले समय में एक परिकल्पना है। एंड एज महात्मा गांधी जी सेड, दिस इज माय लास्ट कोट, दैट द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ is to lose yourself in the service of others. ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो the time for action is now, because every life matters and every moment counts. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।